welcome to everybody in this amazing mastermind session where you are going to learn about mastery of meditation. That's meditation mastery. A lot of students come to me, sir, I don't have time for meditation. Sir, it's very difficult for me. Sir, 30, 40, एक घंटा 2 घंटे तक एक विचार के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना, it's very difficult. How can I do it? It's like, muscles को strong करने के बराबर है. And if you ask me, your brain has muscles too. And meditation is only the gymming where you strong your every day you make it more strong, the muscle of your mind, and that's very important. और हम लोग और और हम लोग कहाँ पे पीछे रह जाते हैं? इस मस्तिष्क के जो मसल्स हैं उनको हम कभी स्ट्रांग नहीं बनाते. Now let me make it so simple. Biggest number of suicides, I don't know, I think it was 1.3 million or I don't know, I still don't know, मुझे clear नहीं है. Every day they are committing, every year they are committing, every year. Even the maximum number is from 15 to 29 years old. Youngsters, they are committing suicide. And why youngsters are committing suicide? Because they don't have control over their physical life and their emotional life. Physically, that external outer lifestyle that they're living with the people, and most importantly, they don't have control inner side. उनके अंदर क्या चल रहा है, they don't even know that. मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे यही नहीं पता. And that is the biggest reason that youngsters today are committing suicide. And I don't want to make it so big issue of it. I just want to say one thing, sir. Okay, I just want to ask everybody, what is the biggest reason of suicide? According to you, I want everybody to type right now in the chat box, what is the biggest reason according to you the youngsters are committing suicide? According to you. Let me see. They feel loneliness. Okay, their stress is increasing, their career failed in the career, pressure of anything on their mind. Okay, Neha is saying depression, Shelly is saying again stress, Hemant is saying depression, Avni is saying lack of self-esteem, Priyanka is saying helplessness. Okay, Mayur is saying lack of self-acceptance, Bhavya is saying stress, Savan is saying depression, Manish is saying lack of money, Lakshika is saying career tension, Himani is saying lack of happiness. Okay, Monu is saying depression, Yogita is saying no control over their feelings. Okay, wonderful. जिन्होंने जो reply दिया, it's amazing. मैं सारे नहीं पढ़ पा रहा, but still it's wonderful. Wonderful. Now, if you see an anxiety, depression, lack of fulfillment, and all this lack of money, no control over your balance, imbalance, emotional imbalance, and everything is, killing you every single day. And we have seen in our आस पड़ोस में हम देख चुके हैं, a lot of youngsters are dying. They are dying just because of one reason, that they do not have control over their feelings. They do not have control over their life, what is happening right now. My question to everybody right now, if you are listening to me right now, if your complete focus is with me, if you're just, living out whatever the blabbering out, whatever the shit is happening around you, I don't care. If you're giving your focus right to me, I just want to ask you one simple question. I will not say anybody's name, but I want to ask this question. Are you happy with your life right now? Yes or no? I will not say your name, but I just want to know, are you happy with your life? Yes or no? No, yes, no, 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 yes, two yes. Okay, completely not. No, yes and no both. Okay, no, 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 no. I see only 3 years till now. I want to make it happier. Okay, ठीक है, अभी नहीं है मतलब. No, no, because I want to be successful. Okay, no, 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 no. It's a big no. Both. So I see that the ratio is saying 80% youngsters, 80% participants are now saying that they are not happy with their life, and 20% is saying they are happy with their life. The biggest reason that you are not happy is just having a feeling in your mind that you are not happy. And if you want to become happy, you will be happy. I just want to make it simple. एक लड़का जिसका ब्रेकअप हो गया अभी अभी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, he is one of the sad person in this world. He is one of the sad person. अरे सर, आपको क्या पता सर, मेरा प्यारा मुझे छोड़ के चला गया. जिंदगी थी सर मेरी, सांस नहीं लेता था मैं उसके बिना, खाना नहीं खाता था सर, अब क्या करूंगा. मैंने कहा उसके बिना सांस लेगा भाई,
उसके बिना खाना खाएगा, सिंपल. And he is crying so badly. He is one of the sad person in this world. अभी जो ये हंस रहे हैं ना, इन सब के साथ ये हो चुका है. So he is one of the sad person in this world. Huh? He's right now facing a lot of issues. He's completely, he's just targeting himself. वो अपने आप को target कर रहा है. He is feeling like he is unaccepted, denied, not fulfilled, denied by loved ones, denied by family, and he is thinking कि उसके अलावा इस दुनिया में हर व्यक्ति खुश है, सिर्फ वही इंसान इस दुनिया का सबसे 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 दुखी इंसान है. एंड दिस इज व्हाट द फीलिंग ही इज हैविंग राइट नाउ. अभी वो चाहे तो व्यक्ति एक सेकंड में सुसाइड कर सकता है, और उस व्यक्ति के लिए आज की डेट में सुसाइड करना आसान है, जिंदगी को जीना मुश्किल है. नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. अगर अभी वो इतना उदास है, अभी मैं उसकी गर्लफ्रेंड को उसके पास वापस ला दूं और उसकी गर्लफ्रेंड आकर के उसको बोले ना 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 ना, आई वाज जस्ट किडिंग, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, मैं तो आपके साथ हूं, आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, एक सेकंड में उस व्यक्ति का माइंडसेट बदल जाएगा एंड ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अगेन. So that means his happiness, his peace, his internal life is dependent upon others. He is dependent. He will be happy, he will be sad, it's just because of one person. If he or she is with him or her. If that person is not with you, you will be sad. If that person is with you, you will be happy. And this is what is happening. And if you have this kind of mindset, your life is gonna be very dangerous. It's gonna be dangerous state of life, guys. Trust me, I have experienced it. I have seen a lot of people, a lot of students come to me and say, "They sir, I am facing this problem. I'm out of this world now. I want to die. This is the end of the world for me. What should I do now?" I just will say one thing. Just ask yourself, is this the reason that you should die? Is this the reason you should quit? Is this the reason you should give up? No, this is not the reason. There are a lot of stuff that you need to learn, and today I'm teaching you about failure. जिंदगी उससे कैसे बाहर आना है, breakup उससे कैसे बाहर आना है, relationship scary relationship उससे कैसे बाहर आना है, and most important, having an emotional balance, control over your emotions, how to bring that. This is what I'm going to teach you. And I asked you, what is the biggest reason? Everybody was saying stress and anxiety, not accepted, failure, and they are not successful and all aap sabne reason. But why are you saying this? Because you have seen it. Everybody in this world is going to discuss the problem. Everybody in this world is going to discuss, sir, ye ho raha hai. Nobody is going to discuss what is the solution. Then what should I do? Now my question to everybody, before I start today's class, what is your answer that they can come out of the depression, stress and anxiety, failure, lack of kind of negative thoughts in their life? How can they come out? So Lakshika is saying the meditation one. Okay, I welcome this. I welcome. So Siddhant Arya, live the past, move on to the future, enjoy the present. Okay, Priyanka is saying meditation. Yogita is saying self-love. Nikki is saying, Sonia is saying meditation and book reading. Avni is saying self-introspection. Wonderful. Myri is saying counseling sessions. Okay, relive happy moments. Okay, and read Srimad Bhagavad Gita. That's wonderful, Sahil. That's wonderful. Tanishka, what's he saying? Living in the present moment. Shali is saying meditation. Falak is saying sharing your thoughts with others. Neha say focus on the Neha is saying focus on positive things you rather than negative things. Okay. Savani is saying self-study, self-love, and a lot of meditation. Ignore the people, ignore the negative situation. Okay. And thinking about the problem and then trying to find out. Think about the problem and try to find out the solution. Okay. जितने भी आ रहे हैं, I really respect. Thank you so much, Shruti. I respect your answers. I respect it. So everybody is saying simple. अभी सब लोग एक बात बोल रहे हैं कि सर ये करना चाहिए. अरे जब सवाल का जवाब पता है तो करते क्यों नहीं हो? जब सवाल का जवाब पता है तो करते क्यों नहीं हो? सिंपल सा फंडा है. Thousands people will say you, lots of ideas, lots of things people are going to say you, but apply कौन करता है जिंदगी में? Only 5%. So this is the 5% genius club. Today we have 26, 27 people right now in the classroom. So we are 5% genius people. The first thing.
The second thing is up 5%. इसमें से भी जो आज क्लास लगा रहे हैं इनमें से only 5% people are going to follow. But before than that, I go to the next session and I share with the first session with you. अब let's time to ask the guarantee. Let's time to ask the promise जो आपने कल अपने आप से किया था. आप में से कितने बच्चों ने अभी तक सारी की सारी टेक्निक्स को फॉलो किया है? पहले मुझे एक बार ये बता दीजिए. जिसने भी सारी की सारी टेक्निक्स अभी तक फॉलो किए, जैसे आई इन द चैट बॉक्स. आई टाइप आई ओनली. Okay, Bhavya is saying I have done it. Poonam is saying I have done it. Bhavya Grover is saying I have done it. Yogita is saying 2 left. I will do it at night. Good. Okay. Tanishka is saying I'm doing it. Okay. Lakshika is saying some. Monu is sir, my first time. Okay. Shelly is saying I have done all. Okay, cool. Sahil is saying I have done all. Satakshi is saying I have done all. Lakshika, 3 is left. I'll continue it in the night. Okay, cool. So जिसने ये सारी हैबिट्स को फॉलो किया, congratulations. Shruti is saying I have done all. Sonia is saying continuing finished till night. I have done all except morning wake up. अरे भाई morning में नहीं उठे तो फिर फायदा क्या है उसका? Siddhant, if you don't get up at morning at least 4:30, then there is no benefit. Okay, rest all the people have followed. So जिसने सारी follow की हैं, welcome to the 5% club. But एक बात बताऊं, एक डोज से कभी भी इंसान की बीमारी ठीक नहीं होती. एक दिन में पढ़ने से आप एक महान व्यक्ति नहीं बन जाते. एक दिन में आप जिम जाने से 6 पैक्स आप नहीं बना लेते. एक दिन में एक पेज पढ़ने से आप किताब के महारथी नहीं बन जाते. एक दिन में आप एरो चलाने से अर्जुन नहीं बन जाते. एक दिन में आप दौड़ लगाने से आप हुसैन बोल्ट नहीं बन जाते. एक चुटकुला सुनाने से आप कपिल शर्मा नहीं हो जाते. उसके लिए आपको लगातार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है. एंड ये लगातार प्रैक्टिस होती है जो आपको बनाती है. एंड Before I go, today's next session, meditation mastery. जिस meditation को आपने देखा है उसको आज मैं एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने वाला हूँ. चमत्कार, जादू. अब मुझसे किसी ने कहा, बोले सर जादू होते हैं, आप जादू में विश्वास करते हो? आई सेड वन थिंग, जादू होते हैं, मैजिक होता है और इसी दुनिया में होता है और कहीं नहीं होता. इसी दुनिया में मैजिक होता है. एंड आज वो मैजिक आप मेरे साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो आई होप सो you all are excited for that magic, excited for that learning. But before than that, before I share it, I want to say one thing. जिन्होंने follow किया, God bless you. Welcome to the 5% club. जिन्होंने follow नहीं किया, आप खुद को गारंटी देने से टूट चुके हो. आप खुद को गारंटी देने से एक कदम पीछे आ चुके हो. अगर आपने एक भी पॉइंट को फॉलो नहीं किया, you missed it. And if you have missed it, there is one thing that is very precious. कल आपने खुद बोला था time is very precious. No, if you missed it, it's gone. The focus on that time is very important. And I want to say, count every second of your day. Get up at 4:30 a.m. and start living your life as per my conditions. And then we will run the great life. जादू होता है, मैजिक होता है और वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ. बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. मुझे इंस्टाग्राम पे आज सुबह एक मैसेज आया. मैं पढ़ सकता हूँ वो, बिकॉज अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट इट, बट आई वांट टू रीड दैट मैसेज ओनली. एक सेकंड लगी मुझे. Thank you so much, sir. Today's session was absolutely amazing. Firstly, thank you so much for giving me this opportunity. I learned a lot. It's very beneficial for me. It's superb. Thank you so much for all your blessings. Okay, thank you. जिन्होंने लिया मैं उनका नाम नहीं लूंगा. सेकंड, मुझे आज सुबह 4:30 बजे 4-4:30 के बीच में एक मैसेज आया मॉर्निंग में. एंड उसने कहा, सर आई गॉट अप एट 4:20 मॉर्निंग. 4:20, हाँ 4:20, 4:20 पे इन द मॉर्निंग. I was full of energetic and first time जिंदगी में बिना अलार्म के उठी हूँ. I was so much excited to read that all the things and I was so much happy that whatever Bablu is doing so good. Yeah, good. Shruti saying, sir, it's same with me. Okay, cool. So जो लोग कल उठे, most welcome to the 5% Genius Club. आप खुद से उठे हो बिना अलार्म के, वेलकम टू द 5% जीनियस क्लब. वेलकम एवरीबॉडी. सो जो लोग सुबह 4 बजे उठ करके आपने मेडिटेशन किया, आपने रीडिंग की, आपने वॉकिंग किया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने पानी पिया, आपने ग्रैटिट्यूड डायरी पे गए, एंड यू डिड इट वंडरफुल. So I want to read one sentence. If you stand for a reason, be prepared to stand like a tree. If you fall on the ground, fall like a seed and grow back and fight again. So others can start from tomorrow. Okay, Shally is saying, guys, you can start it from tomorrow. Okay,
Sir, if I sleep at 1 a.m., I think it becomes impossible to wake up early in the morning. If you are sleeping at 1 a.m., I don't know why are you sleeping so late. Just, leaders get up at 5 a.m. I don't know when they slept. Okay, so I'm just coming up today's class. I don't want to waste much time. So master your day, meditation mastery. So this is what I'll be sharing today, guys. Meditation mastery, very important. The first thing that I want to ask, how meditation can elevate your life. One step harder, one step bigger you will become. How is this possible that only one thing named meditation can can bring big changes in your life and can change you completely from basic roots to making you one of the wonderful and most strongest tree, giving a lot of fruits to the world. It is possible just by one thing, that giving meditation, giving time to meditate, giving time to excel yourself, giving time to self-evaluate, giving time to realize your face value, giving time to analyze your own image. What are you? And do you give time to yourself? And if you're giving time to yourself, then it is just possible by one thing, doing meditation. But before than this, let's see. अभी आप लोगों से मैंने पूछा what is the biggest reason stress. स्ट्रेस सुसाइड क्यों हो रहा है, तो आप सबने कहा सर स्ट्रेस इज द बिगेस्ट रीजन. देन ट्रस्ट मी, आप लोगों ने 10 में से 7 बच्चों ने कहा स्ट्रेस की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं. तो 10 में से 10 कारणों में सबसे बड़ा कारण जो है वो है स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को मारने के लिए सबसे बड़ा हथियार है वो है मेडिटेशन. देयर इज नो पिल्स. इस दुनिया में कोई पिल नहीं है जो आपके स्ट्रेस को मार सके, बट एक मेडिटेशन ही है. जब आप अपने साथ बैठते हो, की हुई गलतियों को एनालाइज करते हो और एक नई लाइफ का वेलकम करते हो, एंड स्ट्रेस कि सबसे बड़ा उसके ऊपर पूरा ब्रह्मास्त्र चला करके आप बैठ जाते हो, वो है आपका मेडिटेशन. आज की डेट में यंगस्टर्स सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस को मारने के लिए आपके पास ब्रह्मास्त्र है आपका मेडिटेशन. एंड इफ यू डोंट डू इट, यू आर लूजिंग इट गाइस, यू आर लूजिंग इट. Next is control your anxiety. I just want to take 1 minute. I want to take 1 second. Sorry guys, I'm so sorry for that. A little bit inconvenience. I just want to come back. Yeah. So I was sharing about stress. So this is the biggest hunter. Meditation is the biggest hunter for the stress. And control your anxiety. Anxiety क्या होता है? भविष्य की चिंता को लेकर के बैठे रहना. अब एक बात बता देता हूँ आपको. Present is the biggest gift by the God. Future is a mystery. Past is history. Present is a gift. That's why it is called the present. It's a gift. So the biggest thing that you can do is don't care about future. Don't worry about past. Just enjoy now. And आपकी anxiety, जब भविष्य की टेंशन लेकर के बैठे रहते, especially boys, स्पेशली बॉयज, क्या होता है सर? भविष्य की टेंशन है सर, अपने करियर की टेंशन है, इस सेम ऑर्डर सर, शादी होगी या नहीं होगी, लड़के वाले मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लड़की वाली की लड़की कैसी होगी, लड़का कैसा होगा, a lot of tensions, you all are living with a lot of stuff. सर मेरा ये काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा. इस एंजाइटी को किल करती है मेडिटेशन, the self realization. Okay, next one we have promote emotional health. सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल हम लोग इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं. वी आर कंप्लीटली, हम लोग इस बॉडी से तो हम बहुत अच्छे यंगस्टर्स हो गए हैं. हम सबकी उम्र हो गई है 18, 20, 22, 25, 26, 27 साल, बट आवर इमोशनल इम्बैलेंस इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड. एक सेकंड में रोने लग जाते, एक सेकंड में उदास हो जाते, एक सेकंड में गुस्सा आ जाता है, एक सेकंड में you changes just within a second. And your emotional balance, you are grown up with a body, but emotionally you are just a little child. And that is the biggest reason कि आप लोग दिमाग से बड़े नहीं हो. Emotionally you are not strong. Enhances your self awareness. Meditation ही आपकी self image. अब एक बात बताता हूं मैं आप सबको. अगर आप सबको ये नहीं पता कि आप कौन हो, तो आपका इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है.
अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो तो आपका इस दुनिया में आने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल सा बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन, आपका जन्म किस दिन हुआ है? प्लीज राइट डाउन योर डेट ऑफ बर्थ। I just want to know, simply I just want to know, just write down in the chat box, comment box, okay, I want to read it. Okay, 2003, 2000, 2002, 2nd October, चलो आप डेट ही बोलो, मैं सिर्फ ईयर बोलूंगा, 2002, 2000, 1997, 96, 97, 98, 99, 94, 97, 1987, 1983, 1997, 1987, okay, 90, चलो ठीक है जो भी आ रहा है, thank you so much. Now I want to tell you about my birth. I was born when I realized why I was born. सर मेरा ओके मैंने अपना बता तो दिया. I was born when I realized why I was born. मेरा जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरा जन्म क्यों हुआ. Now my question to everybody now. अभी मैं आप सब में से सिर्फ एक बच्चे के साथ अभी कॉल पे बात करने वाला हूँ. एंड लेट्स सी मेरे साथ कौन बात करेगा. क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ है, क्या आपको ये पता है? यस और नो. एंड जिसको पता है जस्ट से आई एंड आई विल टेक यू ऑन कॉल. लेट्स सी हु विल से. Okay, let me just see. Let's see who will. Okay, 2 people are saying no. Okay, let's take one student to the call. Hi Siddhant. Hi Siddhant, how are you? Good morning, sir. Oh, good afternoon, evening, sir. Good evening. How are you? Thank you. Good, sir. Good. So a little bit looking nervous, huh? Okay, just tell me. Let's talk about your self-awareness. My question is very simple to you. आपका जन्म क्यों हुआ है? Sir, to make my family happy and fulfill my dreams. Just to make your family happy and fulfill your dreams, you are selfish? Yes, sir. In this case, I am. In this case, I am. Then what do you want to do? Simply just tell me, what do you want to do? How would you like to serve to the country, nation, your society, everybody, your neighbors? How would you serve to these people? Sir, without hurting anyone and fulfill parents' dreams, sir. But this is just called being selfish nature, no? You are just caring about yourself only. And if you don't know about how to help others, then you don't stand. और हम सब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं. हम सबको भगवान ने एक प्रोजेक्ट दिया और हम उसका बहुत बड़ा हिस्सा है. और अगर हमें वो नहीं पता, then how can we live our life? सर स्टार्टिंग तो घर से करनी पड़ेगी. स्टार्टिंग घर से करनी पड़ेगी. पहले अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी. हाँ. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. Anyone else? I just want to ask anyone else. If anyone else wants, just say I will take you on call. By doing great work, showing kindness, never tell a lie to the world, to make this world more beautiful. Okay, who wants? I want to know. Cool. Okay, I'll come back with this. Thank you so much. Time is up, guys. Now I cannot take anybody. So the biggest thing that you should know is आपके जिंदगी का सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन क्या है. तो मेडिटेशन आपको बताने वाली है कि भैया आपकी जिंदगी में, आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो, क्या पर्पस है आपकी जिंदगी का. और जब तक आपको आपका पर्पस क्लियर नहीं होता, तब तक आप अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लेंथन द अटेंशन स्पैन. भैया एक जगह पे कभी फोकस ही नहीं बन पाता. एक जगह पे हम कभी भी फोकस नहीं कर पाते. हमारा जो अटेंशन होती है किसी भी चीज के प्रति, जब हम फोकस बनाने लगते हैं उसके ऊपर जस्ट 1 मिनट 2 मिनट सोचते हैं, उसके बाद बात खत्म. हम उसके ऊपर अटेंशन नहीं बना पाते. नेक्स्ट, कैन जनरेट काइंडनेस. one of the most beautiful word in the lockdown period I earned. सबसे ज्यादा कीमती वर्ड अगर कोई मैंने अर्न किया था तो वो था काइंडनेस. शो योर काइंडनेस. इस दुनिया में हर बंदा गाली देने वाला है दोस्त. हर बंदा झूठ बोलने वाला है. हर बंदा फ्रेबी है. हर बंदा धोखा देने वाला है. हर बंदा आपको नीचे गिराने वाला है. हर बंदा आपको डिमोटिवेट करने वाला है. और मैंने देखी है दुनिया,
I'm just saying it with my own experience. People are going to degrade you, demotivate you, and they're going to tell you that this is not made for you. And उनके लिए सबसे बड़ा challenging word होता है kindness. You know, one of the most beautiful word जो मैंने earn किया इस lockdown में वो था kindness. And I was so much happy. One of my team member, Kanika ने क्या किया? Kindness के नाम से एक Instagram page बना दिया. Dr. Kanika, this is our page. Kindness. So one of the most beautiful word. Be kind to your friends. Be kind to your parents. Be kind to your relatives. Be kind to the someone who is sitting sad and ask them, "Bhaiya, kya hua?" Just you need to share great words. You know, have a great kindness. Kanika is saying grateful. Grateful Kanika. Okay, good. So you need to learn. So you will learn. आप सीखोगे. भैया कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सिखाया नहीं जाता, अपने आप सीखी जाती हैं. अगर आप उसको सिर्फ किताबों में सीखते रहोगे तो जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी जबरदस्त कहानी है. एक बार एक व्यक्ति एक पहाड़ के आसपास रहता था और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना चाहता था. तो लोग उस पहाड़ पे डेली चढ़ते थे, नीचे आते थे, तो वो भी चढ़ना चाहता था लेकिन उसने कभी चढ़ा नहीं. तो वो लोगों के पास जाता और पूछता, भैया आप इस रास्ते से इस पहाड़ पे चढ़े हो तो इस पहाड़ का कैसा है दृश्य है? तो वो कहता है, इस पहाड़ से यहां से जब आप जाओगे तो ये होगा, ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और ऊपर जाओगे तो ऐसा पहाड़ है, वैसा पहाड़ है, ऊपर से ऐसा लिखता है, वैसा दिखता है. वो व्यक्ति उसको बता करके चला गया. दूसरे दिन एक और व्यक्ति आया, एक और राहगीर आया, एक और ट्रेवलर आया और उससे पूछा, भैया आप इस पहाड़ पर दूसरे रास्ते से गए हो तो इस रास्ते के बारे में थोड़ा मुझे बताओगे? तो उसने कहा, इस रास्ते से ये होगा, पहाड़ इतना सुंदर दिखेगा, इतना ब्यूटीफुल दिखेगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा, और उसने बताया और वो चला गया. तीसरे दिन तीसरा राहगीर आया, उसने तीसरे रास्ते के बारे में बताया. चौथे दिन चौथा राहगीर आया, चौथे रास्ते के बारे में बताया. पांचवा दिन पांचवा राहगीर आया, पांचवा ट्रेवलर आया, उसने बताया. और 10 दिन के बाद वो व्यक्ति उस पहाड़ के बारे में सारी नॉलेज ले चुका था. जानते हो 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन और उसकी पूरी जिंदगी में क्या हुआ? वो व्यक्ति उस पहाड़ के ऊपर कभी चढ़ा ही नहीं. जिंदगी में उस व्यक्ति ने ज्ञान तो वर्जित कर लिया, काइंडनेस वर्ड तो सीख लिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस, उस रास्ते पर आने वाली वो बेहतरीन चीजें, उस चोटी पर खड़ा होकर के वो दृश्य, शायद वो व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी ना देख पाए और ना वो देख पाया. कुछ चीजें दोस्तों उस राह पर चलने से अपने आप समझ में आने लग जाती है. जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तो आप सिर्फ सीख जाओगे आज मेडिटेशन कैसे करनी है, लेकिन जब आप उसको करोगे नहीं तो काइंडनेस का रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं. सम थिंग्स कम्स विद एफर्ट्स. जान लेना ही सब कुछ नहीं होता. ज्ञान बहुत खतरनाक चीज है अगर उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए. ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर हेड यू हैव इज ऑफ डेंजरस इफ यू डोंट अप्लाई देम. Very simple formula, very simple rule. It's not a big deal. Ideation without execution is delusion. ज्ञान का भंडार आपके मस्तिष्क में जीरो है अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो. So you will learn kindness, help you fighting addiction. अगर आपकी जिंदगी में एडिक्शन है, स्पेशली दारू, स्मोकिंग, सिगरेट वाला कोई लड़का हो तो भैया, लड़की हो तो ठीक है. एंड improves your sleep. अब जो ये लड़की मुझे बोल रही थी, सर मैं 1 बजे सोती हूँ, जो मुझे अभी बोल रही थी, सर मैं 1 बजे सोती हूँ. सो माय डियर, यू शुड डू मेडिटेट. 1 बजे नींद नहीं, अच्छा नहीं होता है. हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द पेन. अब मुझे एक बात बताओ, किसकी जिंदगी में दर्द नहीं है भैया? किसकी जिंदगी में दर्द नहीं है? एंड आपको वो दर्द मिट जाएगा जब आप मेडिटेशन करने लगोगे. ओके, सो मेडिटेशन एंड द ब्रेन. अब मैं आपको कुछ स्टडीज बताने वाला हूँ. 2012 के अंदर एक रिसर्चर्स ने ब्रेन इमेज को 15 यंगस्टर्स की, उनकी, जिन्होंने मेडिटेशन किया, और 50 यंगस्टर्स अडल्ट्स का जिन्होंने मेडिटेट किया, और 50 यंगस्टर्स जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया, उनके माइंड की पिक्चर ली, उनके दिमाग की, और उस पिक्चर से उन्होंने ये निकाला कि जिन्होंने मेडिटेशन किया था उन व्यक्तियों का जो माइंड का आउटर लेयर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था. एंड जिसको हम कहते हैं गैरिफिकेशन. ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जिसके अंदर क्या होता है, आपके माइंड में जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. दैट मीन्स आप जो सुनते हो धड़ाम से सीख जाते हो अगर आप मेडिटेशन करते हो. और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है. उन व्यक्तियों पे किया गया, 50 जिनके पास मेडिटेशन थी और 50 वो व्यक्ति जिन्होंने मेडिटेशन नहीं करी, और रिजल्ट ये आया
उनका प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट हो गया। एंड ब्रेन देन सेज, रिजल्ट क्या रहा 2012 के अंदर NCCIH ने पाया इस बात को एक स्टडी के दौरान कि मेडिटेशन जो होती है वो आपकी अफेक्ट कर सकती है एमिगडाला। इट्स अ पार्ट जिसमें आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हो, इमोशंस को कैसे प्रोसेस करते हो, ठीक है, आपके उस पार्ट को पूरा का पूरा कंट्रोल करने में आपकी हेल्प कर सकती है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन ही आपको आगे बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो व्यक्ति के पास मेडिटेशन नहीं है उसका ये प्रोसेसिंग इमोशंस को कंट्रोल करने का प्रोसेस बहुत जीरो होता है। और तीस नेक्स्ट, अगर आप बीमार हो, अब बीमारियां देखो, एंजाइटी, एस्थमा, कैंसर, chronic pain, depression, health disease, high blood pressure, irritable bowel syndrome, sleep problems and tension headaches, ये जितनी भी ज्यादा बीमारियां आपके अंदर हैं एक सेकंड में दूर हो सकती हैं अगर आप मेडिटेशन करने लग जाओ। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी ज्यादा गोलियां आप लोग खाते हो भैया, तो ये सब कैसे दूर होंगी? जस्ट मेडिटेशन करने से, जस्ट मेडिटेशन करने से। और इसके लिए अगर आप मुझे कहोगे ना कि सर कोई तरीका बता दो, कोई तुक्का बता दो, प्लीज लीव दिस क्लास राइट नाउ। आई डोंट हैव एनी पिल फॉर दिस। मैं आपको कोई और गोली खाने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं आप एक स्वस्थ जीवन जियो, मेरे की तरह एनर्जेटिक रह करके हो। यार आज मुझे बुखार था, बट सी हाउ एनर्जेटिक आई एम राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट आई डू मेडिटेट। I do believe in myself. I do believe that I can do it. So everybody, I just want to ask now, are you ready for the meditation? And जो ready है meditation के लिए type yes in the chat box, और जो ready नहीं है meditation करने के लिए वो इस क्लास को छोड़ के जा सकते हैं। श्रुति सिंह यस, लेट मी सी कौन कौन कह रहा है। श्रुति सिंह यस, प्रियंका सिंह यस, सुमिति सिंह यस, शैली सिंह यस, पूनमी सिंह यस, नेहा सिंह यस, सिद्धांत आर्य सिंह यस, योग्यता सिंह यस, अवनी सिंह यस, कनिका, मोनू सिंह यस, तनिष्का, वत्स, ओके, सावन, मुनीश, सिद्धांत आर्या, कशिश मित्तल, ओके ओके, कशिश मित्तल इज देयर, फलक, मायूरी, सताक्षी, कुणाल, लक्षिका, हेमंत, सोनिया, ओ माय गॉड इतने सारे नाम। सो निकी, भव्या, जीवन, साहिल, चहल, कुणाल, great everybody, welcome to all of you, welcome to all of you to the club of 5% people. You are 5% now. So today I'll be teaching you one of the best techniques to master your meditation. आज मैं आपको कोई ये नहीं बताने वाला जब बैठ जाओ ओम का जब करने लग जाओ. This is not what I'm going to teach you. Let's start the first technique of meditation. Here we go. The meditation techniques, the first one is heart of the rose. Now I just want to ask, the heart of the rose, what is it and how to perform this? इसका टेक्निक आपको पहले बता देता हूँ कैसे आपको ट्राई करना है. फाइंड अ नियर बाय ऑब्जेक्ट. आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिले तो बेटर है, अदरवाइज आप गुलाब का फूल लें, कोई भी फूल लें जो आपको ठीक लगे, आप उसको लीजिए और 5 मिनट तक ध्यान से पढ़ो उसको. And take 5 minutes to sit quietly and concentrate on that object. अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो. जैसे मेरे पास अभी फूल रखा है तो मैं फूल को देख सकता हूँ. आप लोग अपने हाथ में जो भी फूल लेना चाहो, कोई भी फूल लोगे तो बेटर रहेगा. बाकी सब चीजें, मोमबत्ती लेना चाहो, जो आपका मन करे, 5 मिनट तक आप उस मोमबत्ती को, उस फूल को देखते रहो एंड उसको ऑब्जर्व करो. उसके बारे में हर चीज, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके अंदर से स्मेल कैसी आ रही है, दिखने में कितना सुंदर है. एक्नॉलेज करो हर चीज. उसके अगेंस्ट मत जाओ, अपने थॉट्स को मत लड़ो, अपने थॉट्स के बारे में मत सोचो, आपके दिमाग में जो मत चल रहा है उसके बारे में मत सोचो. जो आपके सामने है सिर्फ उसके बारे में सोचो कि इस फूल का कलर रेड है, इसके अंदर 10 पत्तियां हैं, इसके अंदर एक कलर है. एवरीथिंग जस्ट डू इट. एंड एट द एंड ऑफ द 5 मिनट, जैसे ही आपके 5 मिनट खत्म हो जाए, उसको तभी लिखो आपको कैसा फील हुआ. एंड जब आप अपने आप को ये करने लग जाओगे, ठीक है, तो आपको कितनी बार उस दौरान ये महसूस होगा कि आप उस फूल के बारे में सोचते सोचते आपके थॉट्स इधर उधर भी जा रहे थे. और शुरू में ये होगा, और किस तरीके के थॉट्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे उसको समझने की कोशिश करना. और जब बार 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 अपने आप ये करने लग जाओगे तो आपका फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा. मैंने कहा था कल, जब देखने के लिए कुछ ना हो तो हम कुछ भी देख लेते हैं, और जब देखने के लिए एक चीज होती है तो हमारा फोकस अपने आप एक जगह पे केंद्रित हो जाता है. इसी तरीके से मेडिटेशन करना कोई आंख बंद करके हरि का नाम लेना नहीं है. एक चीज के ऊपर ध्यान को केंद्रित कर देना भी मेडिटेशन है. Just keep watching, keep watching, keep watching, keep watching, keep watching. Now I just want everybody. अभी आप सब, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो, लेकिन everybody, आपके एक हाथ में शायद मोबाइल हो सकता है, दूसरा हाथ फ्री हो सकता है. अभी 1 मिनट के लिए आपका टाइम शुरू होता है. आप सभी अपना हाथ आगे लेकर के आए.
Everybody just bring your hand in front of you. Good. And now your time starts now. Look at your hand. उसके बिल्कुल बीच में देखना है, just in the middle of your hand. You see many lines, कुछ रेखाएं हैं, उनको देखो. Just go deep, go deep. Keep watching, keep watching, keep watching, keep watching. ध्यान से देखो उसको. Look at the shape. वो shape कौन से तरीके के बना रहा है? Just look at the shape. अब आप और माइक्रो लेवल पे और ज्यादा जूम करोगे अपनी आंखों को तो आपको रियलाइज होगा कि आपके हाथ की संरचना आपको दिख रही है. सी दिस, स्कैन करो उसको, जूम करो अपने हाथ के ऊपर. यू विल सी, फोकस बनाओ एंड यू विल सी इट. जस्ट कीप ऑन वाचिंग. And you will see something. I don't know you are doing it or not, but it's awesome. It's good to feel. And I can see जो सेंसर होते हैं जो बायोमेट्रिक मशीन के अंदर आती है, मैं उसके अंदर तक जा चुका हूँ. थैंक यू. प्लीज स्टॉप इट. आप सब में से किस किस ने ये टेक्निक अभी अप्लाई की? जस्ट से यस आई डिड. जस्ट से यस इन द चैट बॉक्स जिसने अभी अप्लाई किया मेरे साथ. ओके, let's see. Shruti did it, Neha did it, Shelly, Kanika, Priyanka, Monu, Bhavya, Lakshika, Mayuri, Siddhant, Divya, Sonia, Jeevan, Sumit, Falak, Poonam, Galaxy A20, I don't know किसका नाम है, रूबी सैनी, योगिता शर्मा, कशिश, अवनी, मनीष, हेमंत, तनिष. ओके, everybody did it, everybody did it, everybody did it. So अगर आप लोगों ने अभी ये चीज की, अब ध्यान से देखना. जब आप लोग अपने हाथ के ऊपर देख रहे थे तो आपका ध्यान मेरी तरफ भी नहीं था, जबकि मैं आपके सबसे पास था. मेरी बातों की तरफ शायद नहीं था, क्योंकि मेरा ध्यान, आपका ध्यान सिर्फ वहां पर था जहां मैं आपको देखने के लिए कह रहा था. अब जब आप अपने हाथ की तरफ देख रहे थे और उस बिंदु की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे जहां मैं कह रहा था, तो आपके हाथ के साइड में दुनिया भर की चीजें रखी हुई थी, आपने शायद उनकी तरफ नहीं देखा. तो आपका क्या हुआ? आपका ध्यान केंद्रित हो गया. और इसी को बोलते हैं भैया मेडिटेशन. देखने के लिए बहुत कुछ था, आपने कुछ नहीं देखा. शायद आपने ये भी नहीं देखा कि आपकी 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल बीच में चला गया था. और यहीं से बनता है आपका केंद्र. इट इज कॉल्ड केंद्र. और जब आप अपने आप को केंद्र मानते हो तो आप रियलाइज करते हो आपके हाथ के सामने पीछे दुनिया थी, लेकिन आप सिर्फ उसको देख रहे थे. यहां से बनता है आपका. कैसा फीलिंग आया? जस्ट टेल मी. इट हैपेंस फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पेन फील हो सकता है. ओके, इट वाज अमेजिंग फीलिंग सर, ऑसम. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक. कल से आप फ्लावर के साथ करना, फूल को देखते रहना ऐसे. अमेजिंग फीलिंग. ओके, वंडरफुल फीलिंग, माइंड रिलीविंग. ओके, I got vibrations. Okay, I got vibrations from inside. Very good. तो ये तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो गया भैया. Amazing feeling. Cool, cool. So let's go to the next one. Thank you so much. Now let's go to the next one. So second technique that we have is personal mantras. Personal mantras is very simple. आप जिस भी धर्म से संबंधित हो तो आप ट्रांजैक्शनल मेडिटेशन के अंदर इसको हम लिया जाता है. ठीक है, जहां पर आप अपनी करंट स्टेट ऑफ माइंड से ऊपर उठ करके हरि नाम लेते हो. आप कोई भी नाम ले सकते हो, जिस भगवान में, अल्लाह में, परमेश्वर में, प्रभु में, यीशु मसीह में, अल्लाह में, जिसमें भी आप विश्वास रख सकते हो, आप उसका नाम ले सकते हो. एंड दिस टेक्निक आपको जो ला सकती है, आप बेसिकली एक जगह पर बैठ करके उस मंत्र को जप कर सकते हो अगर आप चाहो तो. अगर आप नहीं चाहते, नो प्रॉब्लम. अब आपको करना क्या है? मेडिटेशन सबसे पहले करना क्या है? आपको 5 सांस अंदर लेनी है, 5 सांस बाहर निकालनी है. एक, ऐसे ही आपको 5 से 10 बार करना है. और उसके बाद आपको मेडिटेशन स्टार्ट करनी है. उससे क्या होगा? आप अपने आप को रिवील करोगे. और जितना ज्यादा आप अपने आप को रिलैक्स एंड रिवील करोगे, उतना ही ज्यादा आप खुद के लिए खुल जाओगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को रियलाइज कर पाओगे, और उतना ही ज्यादा आप सीख पाओगे. ओके, let's go to the next one. I hope so my screen is visible to everybody. The third technique, is it visible? My screen visible? Can I just have yes? Yes. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Please
stop typing. So third technique that we have is opposite thinking. Now opposite thinking का क्या मतलब होता है? Opposition thinking. Opposite thinking है, वैसे इसको opposite thinking बोलते हैं. Think oppositely. मान लीजिए मैं सोचना चाहता हूं कि भैया मैं आपको मुक्का मारूंगा, तो इसका opposite thought हो. Opposite thought क्या होगा? इसका opposite thought ये होगा कि मैं आपको respect दूंगा. मैं किसी को गाली दूंगा तो उसका opposite क्या होगा? I will respect him. मैं जब भी गलत सोचने लग जाऊं, जस्ट गो फॉर द ऑपोजिट थिंकिंग. जैसे ही मन में एक ख्याल आए, उसका ऑपोजिट थॉट लेकर के आओ. एंटी बनो यार. गलत चीजों के एंटी क्यों नहीं बनते हो आपकी जिंदगी में? अब एक बात बताऊं, आज मैं आप सबको एक सच बताता हूं. कौन कौन एक सच जानना चाहता है? जैसे यस, मैं एक सच जानना चाहता हूं. अब सच ये है, वो ये है कि आप सब दुर्योधन हो. भैया ये मेरी खुद की डिस्कवरी है. दिस इज माय ओन डिस्कवरी. अब आप कहोगे नहीं सर, भगवान कृष्ण कह दो, अर्जुन कह दो, दुर्योधिष्ठिर कह दो, गुरु द्रोण कह दो, और कुछ भी कह दो, भीष्म पितामह कह दो, कर्ण कह दो, दुर्योधन क्यों बोल रहे हो? अब आप में से जो जो दुर्योधन नहीं है, मुझे ये बताओ सर, मैं दुर्योधन नहीं हूं. कौन कौन दुर्योधन नहीं है? वैसे तो आप सब दुर्योधन हो. 100% श्योर. किस किस को लगता है कि आप दुर्योधन नहीं हो? आप सब में से कोई मेरी बात को चैलेंज कर सकता है? ओके, लक्ष्य गाइस कंप्लीटली सेइंग सर मुझे तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं. सब महाभारत का अगर करेक्टर की बात आ जाए तो आप महाभारत के करेक्टर में दुर्योधन स्टैंड करते हो. आप सब में से कौन कौन मेरी इस बात पे विश्वास करता है? कोई भी नहीं करता? नहीं सर, चैलेंज कर सकते हैं हम आपको. प्रूव करके दिखाओ. अगर मैंने प्रूव कर दिया तो आप सब मुझे 1-1 करोड़ रुपए दोगे. ठीक है, चलो 1-1 करोड़ देना ना देना, आप सब मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, इतना ही बहुत है. तो मैं आपको साबित करता हूं कैसे. जब भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के गए दुर्योधन के सामने और बोला कि दुर्योधन सिर्फ 5 गांव दे दे, मुझ पर पूरा विश्वास है. ओके, थैंक यू सो मच सिद्धांत. तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन सिर्फ 5 गांव दे दे, पांचों पांडव इन 5 गांव में बहुत खुश रहेंगे. तो दुर्योधन कहता है कि तुम तो 5 गांव की बात करते हो कृष्ण, मैं इनको सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा. तो कृष्ण कहता है कि तुम्हें पता नहीं तुम गलत कर रहे हो ये. तो दुर्योधन कहता है कि कृष्ण, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी करूंगा. दुर्योधन को पता था कि मैं गलत कर रहा हूं और मैं फिर भी करूंगा. ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब ऐसा टाइम आता है कि हमें पता होता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी करते हैं. और जब हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, तो हम दुर्योधन हैं. यस और नो? थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर्ब रिप्लाईज. थैंक यू सो मच. दुर्योधन कह रहे हैं कि मुझे पता है. थैंक यू. हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी गलत करते हैं. लेकिन अब हमें उस गलत को बदलना है. जैसे ही आपके मस्तिष्क में आए कि भैया एक गलत विचार आ रहा है, तो आपको क्या करना है? उस गलत विचार का ऑपोजिट सोचना है. शुरू में बड़ा मुश्किल टेक्निक होगी. क्या होता है? सेकंड पावरफुल टेक्निक है ये ऑपोजिट थिंकिंग. ठीक है, तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए आप एक दिमाग के जंजाल में फंस जाओ, तो आपको जैसे ही एक विचार आए, उस विचार के बारे में ज्यादा ना सोच करके उसका ऑपोजिट थॉट लेकर के आना है. मान लीजिए आपका मन करता है पिज्जा बर्गर खाने का, जो कि हमें नहीं खाना है इन 10 दिनों में, तो आपको एकदम से उसका ऑपोजिट थॉट लेके आना है. नेगेटिव थॉट का पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देना है. इसके लिए आपको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वो रिक्वायरमेंट होगी अपने विचारों की, कि आप अब अपने विचारों को देखने लग जाओ. कीप वॉचिंग कि क्या नेगेटिविटी आपके अंदर घुस रही है, और अगर वो अंदर घुस रही है तो वो आपके मस्तिष्क में जो एक बेहतरीन सुंदर गार्डन है, क्या उसको पोल्यूट कर रही है? और अगर उसको पोल्यूट कर रही है तो भैया उसको बाहर निकालो और वहां पे कमल के फूल खिलने दो. दैट्स द टेक्निक. Now, so we are going for the next technique. That's a little bit opposite thinking done. Cool. So we have the next technique, the secret of lake. That's my favorite. The secret of lake. अब इमेजिन योरसेल्फ. सीक्रेट ऑफ लेक क्या है? अब देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लेक का मतलब यहाँ पे नदी से संबंधित है, लेकिन आपको नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है. वैसे तो मैं चाहूंगा कि अगर आप नदी के पास जाकर के टेक्निक करो तो बेटर है, लेकिन अगर आप महिला हो, आप बाहर नहीं जाते हो, आप एक लड़की हो, ज्यादा घूमना फिरना अलाउ नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है? अपने सामने एक मिरर रखना है, मिरर. और मिरर में अपनी पिक्चर देखनी है. और अपनी पिक्चर देखने के साथ द सीक्रेट ऑफ द लेक मैं बता रहा हूं, थर्ड टेक्निक. उसके बाद आपको क्या करना है? एक ऐसी जगह, उसके बाद अपनी आईज को क्लोज करना है,
शांति से अपने मन में खुद को विजुअलाइज करना है, अपने मन को शांत करना है, और विजुअलाइज करने के बाद अपने आप को शीशे में देखना है और किस तरीके का व्यक्ति आप भविष्य में बनना चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है। अगर आप खुद को दुनिया का सबसे खुश मिजाज व्यक्ति देखना चाहते हो तो थोड़ा सा शीशे की सामने तरफ देखकर मुस्कुराना है। अगर आप ब्रेव बनना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने अंदर हौसला डालना है। अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा बनाए रखना है। आप जो भी चेंज चाहते हो उस शीशे में खुद को देखना है। दैट्स अ सीक्रेट ऑफ लेक। ये चीज आप पानी में देखोगे तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप पानी में नहीं देख सकते तो आप एक जगह बैठ करके विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा भविष्य में सुंदर व्यक्ति हूँ। एटलीस्ट आप एक चीज विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आज से 7 दिन के बाद आपका जीवन कैसा होगा अगर आप लगातार मेडिटेशन करते रहोगे। योर माइंड अट्रैक्ट्स व्हाट यू वांट। आपका मस्तिष्क वही अट्रैक्ट करता है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हो। अगर आप बेहतरीन व्यक्ति बनना चाहते हो तो बेहतरीनता को आपके अंदर अट्रैक्ट करेगा। अगर आप एक बुरे व्यक्ति बनना चाहते हो तो बुरी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। सो गाइज, यू हैव टू लर्न दिस, ओके? So next go to the next one, and I just want to make it so fast. So technique number 5, introduction of the walking meditation. Now this is evening walk. मैं आपके यहाँ पे बोलना चाहता हूँ क्लियर, ये इवनिंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक नहीं है। इवनिंग वॉक में आपको क्या करना है, एक सुटेबल जगह पे जाना है और जाकर के आपको वॉकिंग करनी है। वॉकिंग कैसे करना है, वॉकिंग मेडिटेशन कैसे है, आपको क्या करना है कि 10 कदम आपको काउंट करने हैं, आपको वहां तक चल के जाना है और फिर वापस आना है, रुकना है, फिर आगे जाना है, फिर रुकना है और अपने पैरों को महसूस करवाना है धरती के साथ। और ये मेडिटेशन आप नंगे पांव करोगे ताकि आपके पांव जमीन को फील कर सके। आपको फील करना है, पॉज देना है, आपको समझना है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। छोटी छोटी चीजों के ऊपर छोटी छोटी अटेंशन लेकर के आनी है। और जब आप अपनी टांगों को उठाओगे, नीचे रखोगे दोबारा फिर से, तो आपको फील करना है इस धरती को। और जब आप इस धरती माता को फील करते हो तो धरती माता भी आपको फील करेगी। ओके? एंड जो भी आपकी अटेंशन ले, जो भी चीज, अगर इधर उधर की चीजें, वैसे तो हमें फोकस करना है कि मेरे टांग, जो मेरे पांव चल रहे हैं वो क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पांव के अंदर जो चलेगा आपका मस्तिष्क उसको फील करेगा। तो आपको अपनी सेंसेशंस के थ्रू जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, इधर उधर माइंड घूम रहा है, परेशान हो रहे हो, उसको साइड में फेंक देना और उसको फील करना है। और जब आप ये बाहर जाओगे तो कोशिश करना पार्क के अंदर इसको कर सको, या ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा घास हो तो आप वहां कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मैजिक। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एम शेयरिंग। अगर आप पहले कभी मेडिटेशन नहीं करते हो एंड यू आर अ बिगिनर, तो आप कैसे करें? सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने आप को कंफर्टेबल करें, थोड़ा एक जगह पे बैठे कुछ मिनट के लिए, उसके बाद फोकस करें अपनी सांसों के ऊपर। 10 बार सांस अंदर, 10 बार बाहर, ये करना है। उसके बाद अपना 2 मिनट के लिए सांसों को महसूस करना है। एक अब गाइड, अब कितनी देर तक आपको मेडिटेशन करनी है। जैसे हमने अभी 1 मिनट के लिए मेडिटेशन की थी तो आपने अपने हाथ को महसूस किया, तो आप शुरुआत 1 मिनट मेडिटेशन से कर सकते हो, फिर आप 10 मिनट पे जा सकते हो, और उसके बाद आप 15 मिनट पे जा सकते हो, और उसके बाद आप अपनी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो कल आपको मॉर्निंग में उठ करके कैसे मेडिटेशन करती हैं वो आपकी मर्जी है। आज से आप शुरू कर रहे हो अपनी 5 मिनट्स मेडिटेशन। हमने म्यूजिक शेयर किया था, वो म्यूजिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको ये बात रखना है कि आप ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो प्लीज अपने आप को महसूस करना शुरू कर दो, अपने अंदर की शांति को महसूस करना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप सो आपको सीखने को मिला। प्लीज गिव मी द फीडबैक, हाउ वाज द क्लास फॉर यू।